Today we'll be talking about angel investing. Just before we start this 30-minute journey, I want to take you guys back to 2022. In 2022, angel investors have lost close to $5.7 billion, which is roughly equal to 47,000 crore rupees. Last year, they have lost close to $3 billion rupees, $3 billion, which is equivalent to 24,000 crores. So I want you to guys answer me on one question, that in spite of these people having access to the capital, access to all the information about the startups, why does these investors have failed miserably, and why these investors have lost so much money? Any guesses? Any answers? Most of the angel investors invest on emotion. Right. कि भाई तू start कर रहा है तेरे लिए क्या है लेगा. Very I nice. don't even care about your business model, so there is no scientific way of angel investing. At least I haven't come across. Right. Also, I think that angel investment requires a very longer time frame as compared to. It will not give a you result in 1 or 2 years. I Right. think it requires at least 5 to 10 years before something blows out of proportion and give you 10x returns or 100x. something. Very good. Anyone else? Please. It is also because of the FOMO that he also invested in that startup. And Very good. Fear of missing out, no emotional connects, like overall no understanding. People go by their emotions. There is an art of investing on angel investment. A friend of mine sitting in this session, 4 months back, he asked me, angel investment के ऊपर कोई material दे दीजिए. And at that point of time, I realized there is actually not any course available in this market which has got everything documented in a single go. I was not able to give him proper things. मैंने कुछ YouTube के links दे दिए, कुछ ऐसे 1-2 videos दे दिए. And I actually realized कि for an first time investor, if someone wants to invest as an angel investor, he actually does not have the right resources. And that is why we have crafted this masterclass on angel investment. How to do it, why to do it, how to do it, and what to be considered to do it. So let's start with something very simple. So there are guys 14 modules, 15 modules. I will not be able to cover this up in this 30-minute session because after this there is a pitch session which needs to be started. But at least I'll try to cover the basics जिससे आपको एक angel investment की journey में होता क्या क्या है उसके बारे में मैं at least brief कर सकूं. So we will talk about what are angel investors, angel investment करनी क्यों चाहिए और करनी चाहिए भी नहीं या नहीं करनी चाहिए. Then we will also talk about यह आई भी कहाँ से. आज से 10 साल पहले तो nobody even has ever heard of even angel investment. ये शुरू कहाँ से हुई. And then we will also talk about financial few terminologies, basic terminologies जो angel investment में हम Shark Tank पर देखते हैं, सुनते हैं, नीचे वो लिखते हैं abbreviations में, वो होती क्या हैं. We'll also talk about portfolio allocations. That's very important. Startups में investment करना चाहते हैं. We want to be into this into the startup investing world, but we actually do not know कि कितने how many startups we should invest in our portfolio. And what is the asset allocation? मेरे पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं. How much money actually I should put that for startup investments? और उन startup में अगर मैं जो पैसे डाल रहा हूँ, further मुझे कैसे bifurcation करनी चाहिए each startup के लिए? What is the amount of return which I should expect? Those things we will talk about. We'll also talk about the investor rights. As an investor, what are your rights while you do these angel investment? We'll talk about how to source deals. ये मिलते कहाँ हैं angel? मतलब आपको अगर investment करनी है, what is the best sources where you should be able to find good investment opportunities? We'll talk about how to evaluate these deals. कैसे इनकी due diligence process होनी चाहिए. And then we'll also talk about the taxation part, which is again very important. If time permits, I'll talk about my personal experiences on angel investment. So we'll start with the first thing. कि what are angel investors? Again, very basic. Anyone wants to take a shot? Who are angel investors? Somebody with their money
No. He doesn't mind losing that amount of money. It's high risk, high reward investment. Okay. So angel investors are the one who are early into a startup. Who generally are the first investors after family and friends. Whoever invest in a business will be considered as angel investors. I know कि angel investors बहुत सारी money lose करते हैं जिसकी वजह से perception है. But actually that can be negated कि कैसे हम उस चीज से बच सकते हैं. So I'll move across bit fast. Now why you should do angel investing? हमें पहली चीज we should always talk about कि हमें angel investment करनी चाहिए भी या नहीं, और ये किसके लिए meant है और किसके लिए it is not meant to they are not meant to do angel investment. So I'll start with the why you should do angel investing. Again, to start with this, I'll take you guys to a journey. आज से let's go back 35 or 40 years back. I'm talking about the era of 1980s. जब ये सारी companies and all the companies which I have mentioned here, सारी companies के बारे में आपने सुना हुआ होगा. If today I ask you कि आप 1 लाख रुपए लगा दीजिए, 1 lakh rupees invested in any of these companies, what is going to be the net worth which you guys will make? 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, नॉर्मल अगर एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और जिसका 8% रिटर्न हो, तो 9 साल में हमारा पैसा डबल होता है. इन जनरल हम ये मानते हैं कि 10 साल में हमारा पैसा डबल होता है कि विद द इन्फ्लेशन थिंग एंड ऑल. बट अगर 8% रिटर्न है तो 9 इयर्स में हमारा पैसा डबल होता है. तो इवन इफ इट इज अ 30-year जर्नी, मैं 3 बार 4 बार उसको डबल कर दूं, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 8 लाख का 16 लाख. बट ऑल द फिगर्स हियर मेंशन्ड, अगर किसी ने 1 लाख रुपीस हेवल्स इंडिया में लगाया हो, आज वो 28 करोड़ है. रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया हो 17 करोड़ है. इन्फोसिस में लगाया हो 20 करोड़ है. पेज इंडस्ट्रीज, व्हाट इज पेज? एनीवन? जॉकी का ब्रांड 71 करोड़. विप्रो वुपिंग 7000 करोड़. मतलब 7000 करोड़. कैन वी इवन इमेजिन? 1 लाख रुपए की सिर्फ इन्वेस्टमेंट 7000 करोड़ रुपए आपको बनाकर दे सकती है. ये पावर ऑफ एंजल इन्वेस्टिंग नहीं थी, ये पावर ऑफ आईपीओज है. व्हाई आई एम शोइंग यू दिस? पहले जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती थी, दे यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल. 40 साल पहले किसी ने विप्रो का नाम नहीं सुना था. Neither Reliance Industry, nor Infosys, nor Havells India. Nobody knew about these companies. The basic idea was कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप उसके साथ, उस जर्नी के साथ रहते हैं for next 10 years, 20 years, 30 years, your money is going to get compounded. क्योंकि वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर पाई है. If I talk about Infosys, the company after IPO for next 8 years grew more than 100% year on year. हर साल वो 100% से ज्यादा ग्रो करते थे. और स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही फंडामेंटल है, जिस पेस से आपकी कंपनी की अर्निंग्स ग्रो करेंगी उसी पेस से आपका पैसा ग्रो करेगा. ये हो सकता है कि यूफोरिया में कंपनी एक्चुअली में 100% ग्रो करी थी, रादर देन प्राइस 100% की बजाय वो 500% बढ़ गया, और डिप्रेशन के टाइम पे वो ग्रो होने की बजाय इनफैक्ट कम हो गया. दिस इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी विच गेट्स क्रिएटेड. बट फंडामेंटली अगर 100% कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं तो प्रिंसिपली 100% ही शेयर का प्राइस बढ़ जाना चाहिए. और ये पावर ऑफ आईपीओज है. आज भी लोगों को अच्छे आईपीओज नहीं मिलते. बट 1994 में क्या हुआ इस जर्नी के बीच में? हर्षद मेहता केम इन. लॉट ऑफ पीपल वुड हैव सीन द जो एक अच्छी सी उनकी एक डॉक्यूमेंट, मतलब टीवी सीरीज बनी थी 1994 वाली. केतन पारेख केम इन. बोगस कंपनीज वर क्रिएटेड. पैसे लिए गए जो एक्चुअली में बिजनेसेस नहीं कर रहे थे. एंड सेबी वाज फॉर्म्ड इन 1995. 1995 में सेबी बना दी गई कि भाई छोटी कंपनीज को अब लिस्टिंग नहीं करवा सकते हो आप. यू हैव टू हैव सर्टेन साइज टू गेट योरसेल्फ लिस्टेड. तो नए बिजनेसेस तो आने हैं, नए बिजनेसेस तो उसके बाद भी बने हैं. अब उनको पैसे कहां से मिलेंगे? दैट इज वेयर दिस होल थिंग ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट, VCs, प्राइवेट इक्विटी फंड्स केम इनटू इंडिया. हम 25 साल पीछे थे फ्रॉम द यूएस में VCs की कॉन्सेप्ट, एंजल इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट 1971 से स्टार्ट हुई थी.
इंडिया में 1995 के बाद कैचअप करने लगी, 2000 तक आते आते तो शुरुआत भी हो गई थी, मतलब देयर यूज, मतलब कुछ कुछ नेटवर्क्स भी बनने लग गए थे इसके लिए, ऑल्दो बहुत अर्ली स्टेज है। इवन 25 साल के बाद उस जर्नी में आज भी 3 या 3.5% लोगों को ही मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट के बीच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग। एंड कंपैरिजन में यूएस में इट इज क्लोज टू 24%, 25%। 1/4 पीपल इन्वेस्ट into unlisted, 1/4 people invest into startups। इंडिया में वो परसेंटेज अभी भी बहुत कम है, इवन आफ्टर 25 साल के बाद। बट क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया कि स्टार्टअप्स जो आज आ रहे हैं वो आने बंद कर दिए गए सेबी के द्वारा। आफ्टर 1995 दे हैव टू हैव सर्टेन साइज, देन ओनली उनकी लिस्टिंग हो सकती थी। तो आईपीओ जो पहले बहुत जूसी हुआ करते थे, वो जूस अब उनमें रहा नहीं। आप अगर ऑब्जर्व करें, एक भी कंपनी इसमें 2007 के बाद नहीं एग्जिस्ट करती। द लास्ट विच वी हैव गॉट एज अ विनर इज पेज इंडस्ट्रीज। मोस्ट ऑफ इट इवन 2000 के पूरे डिकेड में एक कंपनी आई है। टिपिकल चेक साइज $1 मिलियन से स्टार्ट होकर इट गोज टिल 250 करोड़। $1 मिलियन इज मोटा मोटा वही 8-10 करोड़ से शुरू होकर 250 करोड़ तक वीसी जाते हैं, और प्राइवेट इक्विटी फंड्स 250 करोड़ प्लस जाते हैं, राइट? वहां से कॉन्सेप्ट कैचअप करने लगा। देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यही अगर आपने एंजल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट टू द फेमस कंपनीज, जिसमें आपने आज की डेट में सारी कंपनीज के बारे में जिसके बारे में लिखा है, यू वुड हैव हर्ड अबाउट दीज कंपनीज, उनमें 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज इसकी वैल्यू क्या होती? इन फ्लिपकार्ट इट इज क्लोज टू 60 करोड़। ओनली 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इज वर्थ 60 करोड़ इन फ्लिपकार्ट। इन स्विगी it is close to I think 30 crores, Oyo 50 crore, Mamaearth company from Chandigarh 15 crores, and it is only 6 or 7 years back, Mamaearth, when they started their business. Again, most of the businesses you would have heard the names, BharatPe 12 crore, 12 crores, again just a 5-year journey. The power of the compounding has gone. तो ऐसा नहीं है कि एंजल इन्वेस्टमेंट पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट वो पहले आईपीओ के फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी, जब कंपनी छोटी होती थी और कंपनीज ग्रो कर रही होती थी। आज वो एंजल इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में आ गया, प्राइवेट मार्केट्स के कॉन्सेप्ट में आ गया। प्रॉब्लम अब यहां पर सबसे बड़ी क्या है कि लोगों के पास एक्सेस नहीं है प्राइवेट मार्केट्स का, लोगों को इजी एक्सेस नहीं है। आप नहीं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, it's a very organized market today. We have 4500 stock brokers. Zerodha is one of them. 4500 स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड है इंडिया में, और उनके पता नहीं कितने लाख फ्रेंचाइजीज हैं, और ओवरऑल 3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। आप आराम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्राइवेट मार्केट्स में एंजल इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। वी आर स्टिल ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई मूव फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चंस अप टिल सो फार? Guys, these are the simple financial concepts. Again, I'll take you guys quickly through these. I'll not spend much of the time on these terms. First is TAM, total addressable market. जब भी किसी कंपनी को देखना है, हमें ये देखना है कि कंपनी का ओवरऑल जिस भी मार्केट में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसका साइज क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाउंडर विल पुट दैट आउट, अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। देन इज सैम एंड द फाइनल वन इज सॉम, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट एंड सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। 5000 करोड़ की मार्केट है टोटल, जैसे कपड़ों की मार्केट अगर एक एग्जांपल लें, इट कुड बी कि जी $50 बिलियन की मार्केट है, पर मेन क्लोथिंग उसमें से $5 बिलियन की है। और सॉम क्या होगा उसमें, if I am targeting my audience is between let's say between 18 to 30 years, तो 5000 करोड़ में से 2000 करोड़ की मार्केट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। I have given a simple example. Next terminology, CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर को अक्वायर करने की क्या कॉस्ट है? LTV। व्हाट इज LTV? लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? एक कस्टमर जब आता है वो कितना बिजनेस लेकर आएगा, जनरली ये रेशियोज 1:3 के बीच में डिफाइन की जाती हैं। देन इज MRR, ARR, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कितना है उसका, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू कितना है उसका,
मतलब मोटा मोटा एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का मतलब क्या है कि सेल क्या है उसकी पूरे 12 महीने की, और महीने के महीने कितना पैसा बना रहा है, और जो बना रहा है, लेट्स से अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए बना रहा है तो उसका बर्न क्या है, बर्न मतलब उसका खर्चा क्या है, व्हाट इज हिज एक्सपेंसेस। इफ इट इज मोर देन 10 lakhs तो वो बर्न बोला जाएगा उसको, और इफ द कंपनी इज नॉट बर्निंग मनी मींस दे आर प्रॉफिटेबल। द नेक्स्ट इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू, AOV, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से आपका कितना रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट इज डेली एक्टिव यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, जनरली ये नंबर्स मैटर करते हैं कि आपकी ऐप कितने लोग खोल रहे हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे। यूजर रिटेंशन क्या है आपका, कितने लोग आप लूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चर्न भी होगा, चर्न मतलब कुछ ना कुछ लोग छोड़कर भी जाएंगे आपको। ओवरऑल बर्न रेट के बारे में हमने बात की। रन अवे, आप कंपनी के पास कितने पैसे हैं कि उसका मतलब हाउ मच मनी आई हैव इन माय बैंक टू पे आउट माय सैलरीज और फिक्स्ड कॉस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ताकि पैसे खत्म ना हो, आराम से रन अवे मतलब चलती रहे गाड़ी। एंड इफ द कंपनी इज लूजिंग मनी, ये इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो रहा होगा, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। कैश बर्न कितना है, ये हो गया। एंड देन दिस आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इज सीएम लेवल 1, लेवल 2, कि ये भी अगेन लेवल 3 एबिटा पॉजिटिव, देन पैट, मोटा मोटा कि ग्रॉस मार्जिन कैसा है, ग्रॉस मार्जिन के बाद नेट मार्जिन तक आते आते वो एबिटा बन जाता है, और एबिटा के बाद एबिटा इज योर नेट मार्जिन। उसके बाद कितना कंपनी के टैक्सेस लगे या इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन ऐड करके हम पैट निकाल लेते हैं। विल मूव फॉरवर्ड, नाउ आई टॉक अबाउट दिस इज अगेन गाइस वेरी मतलब दिस इज द मेन slide of this master class. First is how much investment capital, मेरे को पैसे कितने डालने चाहिए, how much money should I put in. Let's say you have 100 rupees, और वो पैसे डालने भी है तो कब डालने हैं, आज कितने डालूं, बाद में कितने डालूं, 3 महीने बाद कितने डालूं, 1 साल बाद कितने डालूं, और ये पैसे वापस कब आने शुरू होंगे ताकि एक रोटेशन बन सके। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, यू ओवरऑल व्हाट्स द मैजिक नंबर कि मेरे को कितने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये क्या पेस से मुझे इस एंजल इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए, कितनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए साल में, हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स शुड आई डू। So I'll start with the first question. Sir, guys, overall, it is pretty straightforward. Let's say, so what we have realized with the data, कि अगर कोई, if a person is making 5 investments, angel investments in a year, तो he will end up doing 25 investments in his portfolio. 5:5 का रूल है, 25 से ज्यादा की वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोअर 15 तक जाएंगी, मैक्सिमम 25 तक जाएंगी। 25 कंपनीज, 25 कंपनीज, तो ये जनरल रूल है। Now if I, let's say today I have 1 crore, or let's say I have 100 rupees to be invested, simple rule could be कि मैं 5 rupees के 20 coins बना देता हूँ, and I start putting 5 rupee coin into each of it. अब वो 100 rupees 1 crore भी हो सकता है किसी के लिए, 5 crore भी हो सकता है, 10 crore भी हो सकता है, it could be even 25 lakh. उससे नीचे है तो then you should not even consider angel investing. It is not meant for you. 25 लाख से नीचे अगर आप करना चाहते हैं, this is the rule which SEBI has also defined. अगर 5 साल में आपके पास 25 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो then you should not consider angel investing. मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ guys, I'm not talking about 1 year also. ये भी चीज अगेन समझने वाली है। 100 रुपीज अगर आपके पास 5 सालों में इन्वेस्ट करने के लिए है, मींस पर ईयर ओनली 20 रुपीज वी आर सेइंग, तो वो 20 रुपए आप 5 into 20 कॉइन्स में बांट देंगे, और जो भी कंपनी समझ में आएगी, अब वो कैसे समझ में आएगी वी विल टॉक अबाउट दैट, बट एवरी कंपनी यू विल पुट 5 रुपी ईच। मोस्ट ऑफ इट यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि हम एक कंपनी करते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आया, दूसरी कंपनी की बहुत अच्छा रिटर्न आया, देन वी गो ओवरबोर्ड, 5 की बजाय हमने 30-40 रुपए लगा दिए तीसरी कंपनी में, वो परफॉर्म नहीं की, ओवरऑल रिटर्न्स नेगेटिव हो गए। तो आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है। अगेन
देयर इज अ साइंस गाइस ओवरऑल इसमें भी. अगर आप 20 इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन 5 years यू गाइस मेकिंग अ पोर्टफोलियो विद 20 कंपनीज. अगर आप 20 कंपनीज करते हैं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी कि आपको 1 आउटलायर मिलेगा. आउटलायर का मतलब द कंपनी विच हैज गिवन यू मोर देन 10x, 20x, 30x, 50x और 100x रिटर्न. x मतलब 1 लाख रुपए लगाया था, 100x मींस 1 करोड़. 1 लाख 1 करोड़ से ज्यादा का रिटर्न अगर कोई बनाकर देगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू 60%. 20 कंपनीज में आपकी प्रोबेबिलिटी 60% है कि यू विल गेट 1 आउटलायर इन योर पोर्टफोलियो. इफ यू मेक इट टू 50 कंपनीज, 20 की बजाय now if I make it to 50 companies, the chances of getting that 1 outlier increases from 60% to close to 95%. तो जो हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट बोला कि आपको बेयर मिनिमम 20 कंपनीज करनी है, तो आइडियल स्पॉट को क्या होना चाहिए टू गेट टू 50 कंपनीज. तो 5 रुपए की बजाय आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग 2 रुपीज. सही कह रहा हूं, मतलब मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात. अब ये 50 कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 10 कंपनीज पकड़नी पड़ेंगी, क्योंकि 5 साल के बाद इट इज कंसीडर्ड कि कंपनीज वापस से आकर आपको रोटेशन में पैसे वापस भी देना स्टार्ट कर देंगी. यू विल स्टार्ट टेकिंग आउट मनी ऑल्सो. पैसे लगाए थे 100%, 3 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, 7 गुना हो गए, 10 गुना हो गए, वो भी पैसे वापस आने लगेंगे टू अगेन री इन्वेस्ट. So the ideal cycle or the best cycle would be to have 50 companies invested 2 rupees each in those 50 companies over 5-year tenure. So average per year would be 10 companies. अगर कोई आदमी कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं ज्यादा और कर सकता हूं, the more the better. 50 की बजाय अगर आप 100 पर जाते हो, 95 से आपका परसेंटेज 99 पे चला जाता है to have an outlier in your portfolio. Guys, if you get 1 outlier, all of your investment, मतलब सारे रिटर्न्स आपके बन जाएंगे. I'll give you some simple example. 1 लाख रुपया मैं मामा अर्थ की बात करता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ में हूँ. 1 लाख रुपया मैंने मामा अर्थ में लगाया हो, आज 15 करोड़ रुपीज है. सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. लेट्स से मैंने 10 लाख रुपए लगा, सॉरी लेट्स से मुझे 10 लाख रुपीज लगाने थे और मैंने 10 कंपनीज में लगाए. आई इन्वेस्टेड 10 लाख which is right now worth 15 करोड़, right? अगर 9 की 9 कंपनीज फेल भी हो गई, my 9 लाख goes wasted also. तब भी 1 लाख रुपए की आपकी प्रेजेंट वर्थ 15 करोड़ है. Any day if I ask you today कि आप 10 लाख रुपए लगाओ 6-7 साल में या 7 साल में, if you get a return of 15 crore, will you want to take that up or not? The obvious answer is yes. इतना significant return है. इसलिए आपको छोटे बेट्स लेने हैं, बहुत बड़े बेट्स नहीं लेने और उसको एवरेज आउट करना है. गाइस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नाउ आई विल कम टू द लास्ट पार्ट. कि ये भी एक अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जी मुझे डबल डाउन करना चाहिए क्या विनर्स पे? पहली बात, अच्छा दोनों चीजें हैं. एक कंपनी पैसा लूज कर रही है, ही इज आस्किंग कि भाई कंपनी खत्म हो जाएगी, पैसा डाल दो दोबारा, तो डालने चाहिए? No. आंसर इज नो. पर विनर्स पे भी आता है क्वेश्चन सेम. एक कंपनी थी 1 लाख रुपए और लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन 10 करोड़ की वैल्यूएशन थी. अगला फंड रेज 40 करोड़ पे नेक्स्ट कर रहे हैं, तो शुड यू पुट मनी अगेन इनटू दैट कंपनी और शुड यू लिक्विडेट? ये बहुत अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वीसी पैसे डाल रहा है लेट्स से 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे या 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे वीसी आ रहा है, एक वेंचर कैपिटल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है. तब आपको एग्जिट करना चाहिए या आपको डबल डाउन कर देना चाहिए? एनी अदर गेसेस? जिस साइंस से इन्वेस्ट किया था वो साइंस दोबारा यूज नहीं होगी. I'm sure when you choose a company there's some science, there's mathematics. राइट. तो एग्जैक्ट सेम यूज करोगे, मतलब why you have to think is double down or fail like? मेन वही है कि लोग, जब हम वो बात कर रहे थे ना शुरू में कि 100 रुपए आपको लगाने हैं, 5 साल में लगाने हैं, 10 कंपनीज में आपने 2-2 रुपए लगा दिए.
अब वो 2 रुपए वाली कंपनी एक आगे अब 10 रुपए बनते दिख गए, विनर बन गई है, वीसी आ रहा है, अब वो 2 के 10 को मैं लिक्विडेट कर लूं या फिर और पैसे डाल दूं, क्या करना चाहिए मुझे? Liquidate and put it in another 5 companies. Anyone else? Double down. Secure yourself and move on. Because it is very difficult to find winners, honest. अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने तुरके के फेंक दो, you should never do that. And you should also never double down your bet. अगर आप किसी को कैसीनो का शौक है, या वो एक गेम थी, I don't remember the name, पर आप डबल भी नहीं करते हो. You have to just sit down and relax. Again, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो 50 रुपए 100 रुपए लगाने थे, जो 2 रुपए मैंने शुरू में लगाए हैं, चलो 2 रुपए इस कंपनी में ही आगे लगाने के लिए रख लेता हूं. ये भी एक फिलॉसफी है, ये भी एक थीसिस है कि ये 2 रुपए जो अगला राउंड होगा उसमें फिर डाल दूंगा. तो अगेन रिटर्न्स जब हमने कंप्यूट किए हैं इसमें, तो व्हाट वी हैव रियलाइज कि आप जितना अर्ली जाओगे कंपनी में उतने ज्यादा पैसे बनाओगे. ये नहीं है कि आपको डबल डाउन करना है अपने विनर को. और व्हेन अ वीसी कम्स इन, ऑनेस्टली वीसी कम्स विद दैट अप्रोच जो मैं अभी बात कर रहा हूं. वीसी विल ऑलवेज कम विद एन अप्रोच जहां पर दे विल डिवाइड, अगर उनको $5 मिलियन लगाने हैं तो दे विल डिवाइड टू 1.5. पहले $2 मिलियन दिए, 15 करोड़ दिए, 16 करोड़ दिए, और फिर बोलेंगे 12 करोड़ ऑन अचीविंग दीज माइलस्टोन्स. अगर आप इतने माइलस्टोन अचीव करोगे, 16 करोड़ के बाद 12 करोड़ दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, तीसरा माइलस्टोन अचीव करोगे 12 करोड़ फिर इन्वेस्ट कर देंगे. एंड व्हाट वी आर सेइंग कि जब वीसी पहला फंड कर रहा है, आपको अपने फाउंडर के साथ तब बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपकी टर्म शीट उनके साथ क्या सेटल हुई है. have they given you milestone based funding? बहुत सारे VCs, बहुत सारे क्या 95% ऑफ द VCs डू माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग. एक ही शॉट में पैसा नहीं डालते वो भी सेकंड राउंड तभी करेंगे उस कंपनी में जब उन्होंने कुछ अचीव करके दिखाया हो. थर्ड उसी में ही कंपनी में दोबारा तभी डालेंगे जब उन्होंने कुछ और अचीव करके दिखाया हो. जब आपको और वो अचीव करके दिखाया हो, लेट्स से मेरी आज कंपनी की 50 लाख की सेल थी, तो वीसी मेरे लिए एक रखेगा कि यार नेक्स्ट माइलस्टोन तुम्हारा 75 लाख है, नेक्स्ट माइलस्टोन तुम्हारा 1 करोड़ है महीने का. फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 1 करोड़ की मेरी सेल होगी तो 50 लाख की सेल से तो मेरी वैल्यूएशन आएगी ना आगे. तो you should not, neither you should liquidate nor you should double down your investment. You should just sit down and talk to your founder and understand कि क्या टर्म शीट उसको मिली है साइन करने के लिए, किस वैल्यूएशंस पे और किस तरह की फंडिंग मिलने वाली है. If it is a milestone based funding, most of you guys will, मतलब अगर 10 गुना तब तक हो चुका है पैसा, तो वीसी के आने के बाद वो 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 90 टाइम्स अगले 2 साल 3 साल में बड़े आराम से हो जाएगा. तो आपको कुछ भी नहीं करना. यहां तक मैं समझा पाया? Am I clear? हाँ, any questions? Yeah, so I have a question. So let us say I have 100 rupees in total as investable surplus. हाँ. So how much amount of money should I be keeping for angel investment? Now this is a very good question. ये asset allocation की स्लाइड है जिसके बारे में अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि टोटल मेरे पास 100 रुपए हैं. मैं पहले बात कर रहा था टोटल मेरे पास 100 रुपए स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में है, पर मेरे पास भाई टोटल 100 रुपए हैं. असेट एलोकेशन बोलते हैं इसे. व्हाट शुड आई डू? स्टार्टअप पे कितने डालूं? गाइस 5% डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क. ओके, गुड. एनी अदर आंसर्स? Number of years for which you are investing. नंबर ऑफ इयर्स, टेन्योर कंसीडर करना चाहिए. एनीवन एल्स? So guys, again the ideal answer to this is nothing, because it is also age dependent. It also comes down to the risk which a person will be able to take it up. वो 20 साल की एज पे कर रहा है, वो 25 साल की एज पे कर रहा है, वो 50 साल की एज पे कर रहा है, या वो 80 साल की एज पे कर रहा है. It also comes down to that, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको 5 से 10 साल में मिलना शुरू होना है. But a general thumb of rule is maximum, even for a very aggressive investor, they should not put them more than 25% of the money. 100 रुपए हैं, 25 रुपए से ज्यादा
मुझे एंजल इन्वेस्टमेंट में, स्टार्टअप्स में, प्री आईपीओ में, यूनिकॉर्न्स में इससे ज्यादा, मतलब अनलिस्टेड में 25 रुपए से ज्यादा नहीं डालने चाहिए। बाकी के 75 रुपीज मैं मानकर चल रहा हूं आदमी की जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से उसकी जरूरतें होंगी, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, उसके हिसाब से प्लान होना चाहिए। इट कुड बी लिस्टेड, इट कुड बी इन म्यूचुअल फंड्स, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इट कुड बी इवन इन डेट। बट जनरल थंब रूल, अगेन गोल्ड भी होना चाहिए 5%। हम एज ही मेंशन्ड 5% जनरली हम गोल्ड के लिए बोलते हैं कि 5% गोल्ड एंड रियल एस्टेट आपके पोर्टफोलियो का होना जरूरी है। बट 25% का मैक्सिमम है, सो इट कैन रेंज बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 10 to 25%। आई मूव अहेड। सो गाइस, प्रोसेस क्या होती है एंजल इन्वेस्टिंग की? जनरली नाउ आफ्टर आई क्लोज इन, there will be a pitch session. A lot of founders are going to come in and they will talk about their company. I'll not again take a lot of time on this. जब एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं हम लोग, then we do a lot of due diligence. ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है? फाउंडर ने कुछ भी स्लाइड्स में डाल दिया डेटा, कौन वेरीफाई कर रहा है? एक होता है फाइनेंशियल नंबर्स को वेरीफाई करना, एक होती है उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करना। उसके क्रेडिटर्स, उसके बायर्स, उसके सेलर्स, उनके बारे में क्या फीडबैक रखते हैं, उनके एम्प्लॉइज क्या फीडबैक रखते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज का क्या चर्न रेट है, एम्प्लॉइज कितनी जल्दी छोड़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। ये सारा पार्ट बनता है ड्यू डिलिजेंस का। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, अपने आप में एक पूरा मॉड्यूल है ड्यू डिलिजेंस। तो वैल्यूएशन करते हो और फाइनली यू गेट अ टर्म शीट, और उस टर्म शीट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी के बीच में, डूइंग अ लॉट ऑफ एनालिसिस। ऑल्सो यू विल कंपेयर, जिसमें हम सारी चीज की बात करते हैं कि आपको कंपनी के में क्या क्या देखना चाहिए। द थिंग्स व्हिच आई टॉक्ड अबाउट इन इवन व्हाइल आई वाज देयर इन द सेशन, कि 4-5 थिंग्स। पेट रूल, पहला फाउंडर और टीम, सेकंड उस कंपनी का मार्केट साइज, थर्ड प्रोडक्ट कैसा है उस कंपनी का, फोर्थ कंपनी का डिमांड सप्लाई का गैप कैसा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप होगा तो मार्जिन रहेंगे, डिमांड सप्लाई का गैप नहीं है मार्जिन उड़ जाएंगे। और फिफ्थ, एंट्री बैरियर कैसा है उस बिजनेस के लिए। बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ऐप बनाया है दूसरे दिन कोई और बना लेगा। इंडिया में तो हर बिजनेस के लिए 10-10 रेप्लिका बनते आते हैं, कितना इजी है एंट्री बैरियर। ये भी बहुत चीज, अगेन दिस कम्स अंडर पॉटर एनालिसिस, आप उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं अलग से। सो विल गो क्विकली ओवर दिस। These are the investor rights. Again, this is a complete module. So there are different things which is written in a term sheet. और आपको ये पता होनी चाहिए चीजें कि कंपनी की लिक्विडेशन अगर होती है तो व्हाट इज ड्रैग अलोंग राइट्स। कंपनी अगर फाउंडर कल को एग्जिट करता है तो क्या वो आपको एग्जिट करवाएगा या नहीं करवाएगा, दिस इज रिटन इन योर टर्म शीट। आपके वोटिंग राइट्स लिखे जाते हैं, आपके ओवरऑल कितनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। जनरली गुड पीपल, गुड फाउंडर्स शेयर देयर मंथली नंबर्स, महीने में एटलीस्ट एक बार वो अपनी सेल्स के नंबर, जीएसटी की फाइलिंग, टीडीएस की फाइलिंग, ये अगेन ऐसे नंबर्स हैं जो उनको गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं हर 7 तारीख को। जीएसटी की फाइलिंग, टीडीएस की फाइलिंग, और हर क्वार्टर में अगर प्रॉफिटेबल है तो एडवांस टैक्स के तो बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता। बट दीज 4-5 फिगर्स यू शुड आस्क देम कि वो आपके साथ एक महीने बाय मंथ ऑन मंथ दे शुड बी एबल टू शेयर दैट। एंड इफ देयर आर एनी थिंग्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग्स, they should be able to share that. If the company is changing direction, even if they are pivoting on their business models, you should be able to understand that. आपके लॉक इन के राइट्स क्या हैं, आपका लॉक इन का पीरियड कितना है, आप एग्जिट कब कर पाएंगे। अगेन एंड द एंटी डिल्यूशन की, आप अगर कंपनी में वो पैसा और रेज करता है तो नीचे की वैल्यूएशन पे अगर रेज होगा तो क्या आपको भी, लाइक ऑन शार्क टैंक वी हैव सीन ना, शार्क टैंक्स में आपने देखा है ना, बहुत बार होता है 50 करोड़ पे जी मेरे तो इन्वेस्टर बैठा है, एंड देयर देन द शार्क पर्सन विल से कि जी मैं तो 30 करोड़ पर आऊंगा। तो आपको एंटी डिल्यूशन लॉ अगर लगा होगा तो आपको बाद में कंपनी को भी शेयर इशू कर देने पड़ेंगे एडिशनल। तो आप ऑल्दो इन्वेस्टेड 50 करोड़ पर थे, बट नाउ यू आर इन्वेस्टेड इन दैट सेम बिजनेस ऑन 30 करोड़ वैल्यूएशन। So I'll again move forward bit quickly. Again,
ये भी एक अनदर मॉड्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो टाइप ऑफ शेयर्स ही नहीं लोगों को पता कि यार शेयर्स कौन कौन से तरह के होते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेयर. फर्स्ट इज इक्विटी, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, देन सीसीपीएस, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, देन पार्शियली पेड अप शेयर्स, देन सीसीडीज, डिबेंचर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. देन डेट का तो सिंपल ही हो गया कि अगर आपने लोन ले रखा है, बट अगर हाइब्रिड है तो कन्वर्टेबल नोट्स और सेफ नोट्स. सेफ नोट्स आर गेटिंग वेरी पॉपुलर इन यूएस. एंड देन देयर आर ओसीडीज. अगेन ओसी ये वो एल्स आई नो व्हाई पीपल आर लाफिंग, बट ये ओसीडीज आर अगेन कि आपने एक कंपनी को पैसे दिए, दे आर गिविंग यू, मतलब दे आर गिविंग यू इंटरेस्ट, एंड जब उनका नेक्स्ट राउंड रेज होगा तो कुछ पार्ट वो कन्वर्ट कर देते हैं. ये कैट 2 कैटेगरी के फंड्स में काफी पॉपुलर है. विल अगेन मूव फॉरवर्ड क्विकली. अगेन आई विल नॉट टेक टाइम ऑन दिस. हाउ टू सोर्स डील्स. गाइस, जैसे आप लोग आज इवेंट पे आए हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सोर्स डील. अनदर वुड बी टू ज्वाइन प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म लाइक प्लानिफाई, प्लेटफॉर्म लाइक लेट्स वेंचर. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन प्लेटफॉर्म्स. लेट्स वेंचर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंपनीज मिलेंगी ऐसे. Then there are lot of angel networks, like Punjab Angel Network is there. Gurgaon में IPV है. Then you have in Surat V Founder Circle. I'm talking about the famous ones. Mumbai Angel Network है. बहुत सारे angel networks है. Indian Angel Network है. These networks से आपको deals मिलती हैं. यहाँ से आप source कर सकते हैं कि कहाँ से आपको startups मिलेंगे. Then obviously you can go to even a VC. अगर आप VC के if you do not have time, guys, आज की डेट में अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि if you have time, so there are professional investors like Anupam Mittal, है ना. उसका काम और कुछ भी नहीं है, मतलब they go and sit with the founders all day long. कि भाई अगर आपके पास वैसी बैंडविड्थ है जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आज प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं मार्केट में एग्जिस्ट करते. तो अगर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट की तरह आपके पास टाइम है जाकर कंपनीज को सर्च आउट करने का, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स हैं आईआईटी दिल्ली से लेके दुनिया जहान के कॉलेजेस के, वहां से आप कंपनी सोर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. बट देन इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ बैंडविड्थ, द वन वे इज टू कम टू अस एट प्लानिफाई. वी डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस. तो हम बाकी नेटवर्क्स में, दिस इज हाउ वी आर डिफरेंट, दैट वी डू द ड्यू डिलिजेंस ऑन द बिहाफ ऑफ आवर इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स के पास जनरली उतना टाइम नहीं होता कि हर कंपनी को समझें, उनके साथ घंटों लगाएं, एंड देन दे डू देयर इन्वेस्टमेंट. वी टेक दैट प्लंज. और यू कैन इवन गो टू अ वीसी. वीसी भी अगर आप कैट 1, कैट 2, कैट 3 में जाते हैं, देयर यू आल्सो दे विल डू देयर ड्यू डिलिजेंसेस एंड दे विल गेट यू इन्वेस्टेड. सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस हाउ टू सोर्स डील्स. देन मॉड्यूल 8 says about how to evaluate deals. Again, this is a long chapter. कि कंपनी के again the things which we talked about, 5 things which I talked about, उसी की ही डिटेल्ड यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हमने डेटा डाला है. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन से लेके फाउंडर, टीम, ऑल ऑफ दोस पॉइंटर, बिजनेस मॉडल, कंपनी का क्या डिमांड सप्लाई का गैप है, एंड व्हाट इज दे आर हैविंग व्हाइल so demand supply gap. And the last one is कि what is the how much business, कि कितना easy है replicate करना उनका business. ठीक है. I'll quickly again move forward on module 9. It is again due diligence. Due diligence करनी कैसे है? Legal diligence. So okay, so we will. Can we do it virtually? Like, can we continue virtual session? We can do that. So guys, I'll take couple of minutes to wrap this up. I'll not take much time on due diligence. Due diligence कैसे करनी है? Will not go into details. At least I'll quickly run you through the names. होते क्या क्या chapters हैं वो पता हो, at least दिमाग में खनक जाएगा. How to manage deals, liquidate कब करना है, ये सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है. Again, portfolio management, assessing returns, also assessing risk. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि you need to assess your risk. Taxation part,
एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए व्हाट इज द विच इज द बेस्ट कंट्री फॉर एंजल इन्वेस्टमेंट? एनी अदर आंसर्स? वो तो business के लिए US? Okay. Any other answers? Singapore. England. It is the right answer. So UK has got the best, at least जितनी मैंने अभी तक understanding ली है, UK has got the best rules for investing for doing angel investment. मतलब हमारी गवर्नमेंट अभी उसके आस-पास भी नहीं आई है. Like we have ATC here in India. आप 1.5 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हो, टैक्स सेविंग कर सकते हो. वहां पर आप ATC की तरह आप अगर एंजल इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू कैन सेव ऑन टैक्स एंड व्हाइल यू मेक रिटर्न्स दैट इज अगेन टैक्स फ्री. उसमें भी 2 ब्रैकेट्स हैं. इफ यू आर इन्वेस्टिंग अर्ली वालों में 100% है, और अगर थोड़ा सा मैच्योर कंपनीज में जाते हो, यूनिकॉर्न्स वाली कंपनीज या सोनिकॉर्न्स वाली कंपनी में, वहां थोड़ा कम टैक्स रिबेट मिलता है, लाइक 50%. बट दैट्स द बेस्ट पार्ट. इंडिया में कितना है? There are no rebates, and this is very hefty. If we have to actually grow the startup ecosystem, this has to come down. Less than 2 years, it is 30%. तो 2 साल से नीचे की वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. तीसरा हिस्सा मतलब 33 will be like 1/3 completely, but तीसरा हिस्सा मोटा मोटा 30% का मतलब क्या है? तीसरा हिस्सा गवर्नमेंट ले जाएगी जो प्रॉफिट बनाओगे. More than 2 years, 20% with indexation. मैं इंडेक्सेशन को डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी, बट आप मान लीजिए उसको जब वो एवरेज आउट करते हैं हम तो 5-6% बनता है. तो इट इज नॉमिनल. 5-6% इज फाइन. मतलब 5% तो ठीक है. 5-6% अगर लॉन्ग रन में कर रहे हो तो सही है. और अगर ये शेयर जाकर लिस्ट हो गया तो हमेशा 10%, चाहे वो 2 साल के अंदर हुआ है चाहे 2 साल के बाद हुआ है, कोई फर्क नहीं है. देन ऑलवेज इट इज 10%. अगेन 10% इज डूएबल, बट लेस देन 2 years वाला जो रूल है वो शायद चेंज करना चाहिए. 13th मॉड्यूल, the last one, again the things which we talked about in the early part, fear of missing out. haan ji, Is there any provision to offset the losses also? yes, there is a provision. You can offset the complete losses. उसके लिए फाउंडर से हम बात करते हैं कि आप चाहे 1 रुपए पे चाहे 50 पैसे पे शेयर वापस खरीद लो. आप अपने फैमिली के अलावा किसी फ्रेंड को भी देकर वो 1 रुपए का लॉस बुक कर सकते हो. लेट्स से यू इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी, फाइनली आपने 2 लाख रुपए लगाए थे और पर शेयर प्राइस लेट्स अज्यूम 1000 रुपीज थी. तो उसको ऑफसेट करने के लिए आपको लॉस बुक में दिखाना पड़ेगा. और लॉस तो दिखाओगे कैसे? आईपीओ तो हुआ नहीं, तो प्राइस तो आ नहीं रहा. तो प्राइस दिखाने के लिए आइदर यू डू इट विद योर फ्रेंड्स और यू आस्क द फाउंडर कि यार कंपनी आप बंद कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट ये शेयर वापस खरीद लो, 50 पैसे में खरीद लो, 1 रुपए में खरीद लो. इतने तो शेयर होंगे, 10-20 रुपए से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को. So these are the risk which we have. Fear of missing out, business going bust. All of these needs to be taken care of in our risk. So this is the last slide which I have about us. So we have got, guys, 10,000 plus angels. We're the biggest angel network, I can easily say. As a platform, we are the biggest. We have done 100 crore plus funding in 6 of startups last year, and we have done 150 crore worth of investment in pre-IPOs and unicorns. तो हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के पूरे मार्केट को, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली स्टेज जहां प्री सीड, सीड, प्री सीरीज ए, सीरीज ए, और उसके बाद फिर कंपनीज जनरली लाइन अप करने लग जाती हैं, सोनिकॉर्न या यूनिकॉर्न बनती हैं, एंड फाइनली दे गो फॉर अ लिस्टिंग. आईपीओ से पहले प्री आईपीओ बोल देते हैं. तो ये पूरे फेज को कवर करते हैं. वी हैव 250 प्लस एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद अस ऑन आवर प्लेटफॉर्म. Overall, our vision is कि investors should have the easy access to startup ecosystem, be it startups, pre-IPO, unicorns, and entrepreneur should have easy access to capital on equity fundraising. Overall, these are the types of returns which we have generated. Our returns are more than 50% per year. I know these numbers look very fancy, but these are the kind of returns which we have generated. Overall, when people invest through us, we get them on their cap table. This is another good part with us. We do not charge any commissions. We do not charge any fees. This is how we are very different from all other angel networks present in India. सभी आपसे 2%, 5%, 10% फीस मांगेंगे. नेटवर्क को ज्वाइन करने की भी फीस मांगेंगे, 10,000, 20,000, 30,000. ऐसा कुछ नहीं करते हम. And we deal in the dematerialized format of shares so that आपको shares आपके डीमैट में ट्रांसफर हो जाते हैं. And this is how you can reach out to us.
Any questions? Any last questions? हाँ जी. Competition का. Any competition which we have? No, not right now. मतलब there are people like there are platforms, पर कोई भी पूरा नहीं कर रहा है. जैसे Let's Venture सिर्फ स्टार्टअप्स में है, वो pre-IPO यूनिकॉर्न्स में नहीं है. वो फीस बहुत hefty लेते हैं. और जो बाकी नेटवर्क्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है. अगेन pre-IPO यूनिकॉर्न्स में नहीं है. इंडिया में ये चीज हम कर रहे हैं. यूएस में देयर आर कपल ऑफ पीपल. पीटर थिल बैक्ड कंपनी है जो सेम चीज कर रही है. यूके में भी एक कंपनी है, जापान में भी एक कंपनी है, इंडिया में हम ही हैं जो इतना जहां तक हम पहुंचे, यहां तक अभी तक हम ही पहुंचे. सर हाँ जी. सर अगर मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जी. और सर वो मैंने एंजल इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, फिर ए बी सी डी उठाते हैं जी. और सर फिर उस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है. राइट. उसके जो रेवेन्यू मल्टीपल है, मतलब जो कंपनी है वो बहुत ओवर वैल्यूड हो जाती है. Right. और जैसे वो स्टॉक मार्केट ब्रिज होती है, उसका स्टॉक क्रैश होता है. Right. मेरा सारा जो रिटर्न है सारा गिरते चला गया. Right. इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन यही है यार कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना. मतलब पहली बात, अगर पेटीएम में किसी ने बहुत पहले अर्ली इन्वेस्टमेंट करी होगी तो जो वीसीज थे उन्होंने लेस देन 15 रुपए से इन्वेस्टमेंट करी है. एंजल नेटवर्क्स में वो लेस देन 10 रुपए की वैल्यू बढ़ती है. आज वो 600 रुपए खड़ा है. इवन जो 2200 रुपए का शेयर 600 रुपए पे आ गया तब भी पैसा बनाया. सेम इज विद पॉलिसी बाजार. पॉलिसी बाजार में अगर किसी ने 1 साल पहले भी पैसे डाले होते, जो 900 रुपए का उन्होंने आईपीओ किया, 200 रुपए, 225